وہ گھر سے ہاسٹل جانے کے لیے نکلی تھی تو بارش کے قطعی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اگرچہ بادلوں کی کچھ آوارہ ٹکڑیاں آسمان پر منڈلا رہی تھیں، مگر وہ برسنے کے موڈ میں نہیں لگ رہی تھی۔ اماں نے کہا کہ شفیق ڈرائیور کا انتظار کر لو، مگر اس خیال سے کہ کہیں ٹرین نہ چھوٹ جائے وہ آن لائن کیب کروا کے اسٹیشن چلی آئی۔ ابھی اپنا چھوٹا سا ٹرالی بیگ گھسیٹتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جب ریم جھم شروع ہو گئی۔ وہ تیزی سے ایک بینچ کی طرف بڑھی جس پر پلاسٹک شیٹ کی چھت تھی۔ اس نے اپنے بال اور کپڑے جھاڑے، اپنا بیگ بینچ کے نیچے سرکایا اور خود ذرا آرام سے بیٹھ گئی۔ ٹرین آنے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ اسٹیشن پر وہی مخصوص گہما گہمی تھی، سامان اٹھائے ادھر ادھر دوڑتے بھاگتے مسافر اور آوازیں لگاتے چھاپڑی فروش۔ پچھلے 2 سالوں سے ٹرین کے ذریعے گھر سے ہاسٹل اور ہاسٹل سے گھر آتے جاتے وہ ان نظاروں کی عادی ہو چکی تھی۔ ابھی بھی وہ غیر دلچسپی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سامنے سے ایک خوش باش سامان سے لدی بدی فیملی اس جانب چلی آئی۔ 2 ادھیڑ عمر کے مرد اور عورت، غالباً میاں بیوی تھے، اور ان کے پیچھے پیچھے ایک صحت مند نوجوان لڑکی چلی آ رہی تھی۔ اس نے ایک تقریباً 3-4 سال کی بچی کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور ایک گپلو سا چھوٹا بچہ گود میں اٹھا رکھا تھا۔ ارے بیٹا ذرا سی جگہ دینا، ادھیڑ عمر کی خاتون نے آتے ہی اس کے پاس بینچ پر ڈھیسی گئی۔ ہائے اللہ، میں تو بہت تھک گئی، اتنی تو سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ وہ بری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ ان کے میاں نے تو اپنے ساتھ لائے ایک بڑے سارے بیگ کو سیدھا کیا اور اس پر تشریف فرما ہو گئے۔ اس نے مزید سرک کر لڑکی کے لیے بھی جگہ بنائی۔ نہیں سسٹر، میں کھڑی ہی ٹھیک ہوں، اگر بیٹھ گئی تو منا رونا شروع کر دے گا۔ لڑکی خوش دلی سے مسکرائی۔ ارے گڈو کے ابا، تم تو بیگ پر ہی بیٹھ گئے ہو، اس میں میرے کانچ کے گلدان رکھے ہیں، وہ ٹوٹ جائیں گے۔ خاتون کے حواس بحال ہوئے تو ان کی نظر اطمینان سے بیگ پر تشریف فرما اپنے میاں پر پڑی تو وہ چیخ اٹھی، نہیں اماں، گلدان تو دوسرے بیگ میں رکھے ہیں۔ لڑکی نے ان کو تسلی دی۔ بیٹی تم کہاں جا رہی ہو؟ اب خاتون نے اس کی جانب اپنا رخ کیا۔ وہ چشمے کی اوٹ سے اسے ٹٹولتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آنٹی میں لاہور جا رہی ہوں۔ اچھا، ہم بھی لاہور جا رہے ہیں۔ وہ سب الرٹ ہو گئے۔ چھک چھک انجن پلیٹ فارم کی جانب آ رہا تھا، پھر بوگیاں پلیٹ فارم سے آ لگی، شور و غل مزید بڑھ گیا۔ لڑکی کے دونوں بچوں نے گھبرا کر رونا شروع کر دیا۔ بچی تو چیخیں مار کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ وہ شاید پہلی بار ٹرین میں سوار ہو رہی تھی۔ پلیز آپ ذرا مننے کو پکڑنا، میں اسے لے کر چڑھتی ہوں۔ تو لڑکی نے اپنا بچہ اسے تھمایا اور اپنے ٹرالی بیگ کو گھسیٹتی احتیاط سے بچے کو گود میں لیے ڈبے کے اندر گھس گئی۔ باقی سب بھی اس کے ساتھ سوار ہونے لگے۔ ابھی بھی وہ کسی خالی سیٹ وغیرہ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب اسے اپنی پشت پر ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی، محترمہ، آپ کے بچے کا ایک جوتا نیچے گرا ہوا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو جینز شرٹ میں ملبوس ایک لمبا ترنگا سا لڑکا ایک چھوٹا سا جوتا اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ اس کی نظر بچے کے پاؤں پر پڑی۔ ایک جوتا واقعی غائب تھا۔ وہ بری طرح چھینپ سی گئی۔ شکریہ بھیا، یہ ان کا نہیں، میرا بچہ ہے۔ اس کے پیچھے سوار ہوتی اسی لڑکی نے جوتا اس لڑکے کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اپنا منا بھی اس کے کندھے سے اتار کر اپنی گود میں منتقل کر لیا۔ تمہارا بھی شکریہ بہن، سامنے والی بینچ خالی پڑی ہے، وہیں چلتے ہیں۔ اب شرمندہ ہونے کی باری لڑکے کی تھی۔ وہ اپنا بیگ سنبھالتا آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب سیٹ ہو کر بیٹھ چکے تھے۔ وہ لڑکی کے ساتھ ونڈو سائڈ پر بیٹھ گئیں۔ وہ دونوں میاں بیوی سامنے والی 2 نشستوں پر قبضہ جما چکے تھے۔ جین شرٹ والا لڑکا دائیں جانب ایک سنگل سیٹ پر جمان ہو گیا۔ ٹرین نے اب آہستہ آہستہ رفتار پکڑنی شروع کر دی تھی۔
बारिश की फुहार खिड़की के रास्ते अंदर तक आ रही थी। इसका दुपट्टा भीगता जा रहा था। इसने ग्रिल नीचे करनी चाहिए, मगर वो पूरा जोर लगाकर भी इसे 1 इंच ना सरका सकी। मोहतरमा, ये फिक्स होती है, आप सिर्फ शीशा नीचे कर सकती हैं। इसको ग्रिल से नबर्द आजमा देखकर लड़के ने नरमी से टोका। इसने शीशा नीचे गिराया और बैग से अपना मोबाइल निकाल लिया। बेगम, तुम चाय तो लाई थी ना, प्लास्टिक में, वो पी लेते हैं। मियाँ साहब ने फरमाइश की। अभी तो रहीम यार खान गुजरा है, गुड्डू के अब्बा बहावलपुर जाकर पियेंगे। औरत ने तुरंत मियाँ की फरमाइश रद्द कर दी। मगर बहावलपुर आने में तो अभी 3 घंटे हैं, तब तक तो चाय ठंडी हो जाएगी। बड़े मियाँ की शायद चाय के लिए तबीयत मचल रही थी। अच्छा अब्बा, मैं फ्लास्क निकालती हूँ। लड़की ने एक बार फिर अपना मुन्ना इसकी गोद में डाला और बर्तन निकालने लगी। मर्द और औरत को चाय के कप देने के बाद इस लड़की ने इसकी जानिब भी एक छोटा सा मग बढ़ाया। ये लो सिस्टर। अनम, इसने धीरे से अपना नाम बताया और साथ ही इनकार में सर हिला दिया। अरे नहीं, मैं इस वक्त चाय बिल्कुल नहीं पीती। इसने वही मग लड़के की जानिब बढ़ा दिया। इसने शुक्रिया कहकर कुछ झकते हुए थाम लिया। अब वो इसकी जानिब दीदार नजरों से देखते हुए कप को हाथों में लिए बैठा था। बेफिक्र होकर पिए, हमने इसमें कुछ नहीं मिलाया। लड़की हंसकर बोली तो लड़का जल्दी जल्दी चाय के घूंट लेने लगा और वो अपनी जगह चोर सी बन गई। फिर इसने बड़े मियाँ की जानिब देखा। वो मजे से चाय की चुस्कियां लेते हुए बाहर के नज़ारों का लुत्फ ले रहे थे। उन्होंने अपनी जेब से बिस्किट का एक पैकेट भी बरामद कर लिया था और अब वो चाय में पैकेट डबो डबो कर खाते हुए कितने खुश और आसूदा से नजर आ रहे थे। इसने एक गहरी नजर इन पर डाली। इसके दिल में एक होक सी उठी। बेख्तियार इसकी जहनी रूह भटक कर अपने अब्बा की तरफ चली गई। वो भी यूं ही ट्रेन के सफर में खाने पीने के बेहद शौकीन थे। 1-2 बार इसने बचपन में इनके हमरा सफर किया था। ये धुंधली धुंधली सी चंद यादें बाकी थी। वो फराटे भरती ट्रेन और खाने पीने में मशगूल शफीक चेहरे वाले इसके अब्बा अब तो न जाने कैसे थे, किस हाल में थे। काफी अरसे से इनके साथ कोई राब्ता ही नहीं था। दरअसल इसके बचपन में ही इसके अम्मा अब्बा की तलाक हो गई थी। वो अम्मा के हमरा नानी के घर में रहती थी। तलाक के बाद इसकी माँ शदीद डिप्रेशन में चली गई थी। इनके दिल में यह खौफ बैठ गया था कि अब्बा इसे इनसे छीन लेंगे। मुहमा वक्त इसे खुद से लिपेटे रखती। अब्बा इससे मिलने आते तो इन्हें गैश आ जाता, हाथ पांव ठंडे हो जाते। वो इसे खुद से चिमटा लेती। नानी मुश्किल अलग करके अब्बा से मिलने के वास्ते गली में भेज देती। फिर अब्बा ने भी दूसरी शादी कर ली। उनका आना कम हो गया। नानी अक्सर जताती, देख लो तुम्हारे बाप ने तो छठ बियाह रचा लिया, मगर माँ ने तुम पर अपनी जवानी वार दी। वो अब्बा से और भी मुंतफिर हो जाती। वो फोन करते तो सर्द महरी से बात करती। अब्बा इसके खर्च के वास्ते कुछ रकम भिजवाते थे। इन माँ बेटी को इन मामूली रुपयों की कुछ खास जरूरत ना होती, क्योंकि इन्हें नानी की पेंशन और नाना के असासों का बड़ा आसरा था। फिर अब्बा के फोन भी कम से कम होते गए। गर्मा गर्म पकोड़े, ले लो जी मजेदार पकोड़े। वो हड़बड़ा उठी। ट्रेन बहावलपुर स्टेशन पर खड़ी थी। बारिश होश हो रही थी। भाई, पकोड़े ताज़ा हैं? खातून ने इश्तियाक से पूछा, जबकि लड़की सोते हुए अपने दोनों बच्चों को गोद में लिए खुद भी ऊँग रही थी। हाँ खाला जी, बिल्कुल ताज़ा और खस्ता हैं, पकोड़े वाला लपक कर आया। सौंधी सौंधी सी महक हर तरफ फैल गई। औरत ने पकोड़े खरीद लिए। लो बेटा, चखो तो सही कैसे हैं। औरत ने शाप इसकी जाने बढ़ाया। शुक्रिया आंटी। इसने एक पकोड़ा उठाया। पहले वो चाय के लिए इनकार कर चुकी थी, इसलिए अब इसे मना करना अच्छा नहीं लगा। औरत ने फिर वही शापिर लड़के की जाने बढ़ाया। लड़के ने भी थैंक यू आंटी कहते हुए 2 पकोड़े उठाए और इसे मुस्कुराती नजरों से देखते हुए खाना लगा। इसने घबरा कर जल्दी से पकोड़ा मुंह में डाला। उफ तौबा, इसके 14 तबक रोशन हो गए। इसने पकोड़े के साथ हरी मिर्च भी खाई थी। हॉस्टल के फीके खाने खा कर हरी मिर्च मिसाले की तो आदत ही नहीं रही थी। हरी मिर्च तो ऐसे वैसे भी बहुत चुभती थी। बुरा हशर हो गया। आंखों से पानी बहने लगा। मुंह लाल टमाटर सा सुर्ख हो गया।
पानी की बोतल खाली पड़ी थी। लड़के ने जल्दी से एक छोटी सी पानी की बंद बोतल इसकी जानिब बढ़ाई। वो इनकार करने की पोजीशन में ना थी। इसने घटाघट सारी बोतल चढ़ाई। कुछ हवास बहाल हुए। औरत पकोड़े खाते हुए तबसरे फरमा रही थी। ऐसे होते हैं पकोड़े क्या? सादा बेसन में नमक मिर्च घोल दिया। अरे पकोड़े तो मैं बनाती हूँ। इतने सारे लवाजमात डालते हैं, हरा मसाला, हरा लहसुन, ताज़ा पुदीने की चटनियाँ, पालक, आलू, बंद गोभी, बारीक कटे हुए सूखा धनिया, अनारदाना, इमली का गूदा और बस बेगम बस। इतनी महंगाई में इतने ढेर लाजमात डालना बहुत मुश्किल है। सादा आलू बेसन पर ही गुजारा करो। लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई। आंटी आप शायद पकोड़े बहुत शौक से खाती हैं। अनम शाइस्तगी से पूछने लगी। हाँ बेटा, मगर अब तो सिर्फ सावन रुत में खाती हूँ। डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर की वजह से ज़्यादा खाने से मना कर रखा है। और तुम बेटा लाहौर किसके पास जा रही हो? आंटी मैं तो अपने हॉस्टल जा रही हूँ। अच्छा, तो पढ़ती हो वहाँ? वो कुछ सोच कर बोली। जी आंटी, लाहौर यूनिवर्सिटी में BS फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। इसने इनकी तसल्ली के लिए तफसील से जवाब दिया। सामने बैठा लड़का बेजारी से अपने मोबाइल को देख रहा था। मुहतरमा आपके पास कोई बुक होगी? मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो चुकी है। वो अचानक अनम से मुखातिब होकर बोला। अल्लाह करे नौजवान नस्ल के तमाम मोबाइलों की बैटरियां हमेशा के लिए डेड हो जाएं, ताकि वो किसी तरह किताब की जानिब तो माइल हों। बड़े मियाँ बुड़बड़ाए। इसके पास मुंतशिर हसीन ताड़र का एक सफ़रनामा मौजूद था। इसने जल्दी से वही बैग से निकाल कर लड़के की जानिब बढ़ा दिया। मुबाइदा बड़े मियाँ कोई किताब वगैरह ना होने पर इसे भी 4 बातें सुना दें। ट्रेन अब तेजी से मुल्तान से होती हुई लाहौर की जानिब सफ़र थी। न जाने कैसे बैठे बैठे इसकी आंख भी लग गई। फिर जब लाहौर आया तो ट्रेन एक झटके से रुकी। लड़की के दोनों बच्चों ने एक साथ रोना शुरू कर दिया। वो भी हड़बड़ा कर उठ गई। सभी अपना अपना सामान समेट रहे थे। इसने भी अपना ट्रॉली बैग निकाला। एक अफरा तफरी सी मची थी। दरवाजे के करीब बहुत रश था। वो औरत लड़की के हमराह रास्ता साफ होने का इंतजार कर रही थी। जब इस लड़के ने शुक्रिया करके इसकी किताब लौटाई, फिर इस पर एक गहरी अलविदाई नजर डालकर अपना बैग संभालता हुआ तेजी से बाहर निकल गया। इस फैमिली को तो इनके रिश्तेदार लेने आए थे। औरत और लड़की दोनों गर्मजोशी से इसे खुदा हाफिज कहते हुए रुखसत हुए और इसने सुस्त कदमों से टैक्सी स्टैंड का रुख किया। एक एक करके कई दिन गुजर गए। वो पढ़ाई में मसरूफ हो गई। एक दिन लाइब्रेरी में बैठी अपने नोट्स बना रही थी जब इसकी क्लास का CR इसे ढूंढता हुआ आ पहुंचा। तुमसे कोई मिलने आया है? कैफे में बिठा कर आया हूँ। हैं? कौन आ गया? वो हैरान होती हुई इस शहर में तो इसका कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं रहता था। वो सोचती हुई कैफे आई और फिर दरवाजे पर ही ठटक गई। सामने वही लड़का बैठा था, वही ट्रेन में मिलने वाला। इसे शदीद तब चढ़ी। इतना महज़ब और शरीफ दिखता था, मगर आम लड़कों की तरह कितना छछोरा और सड़क छाप निकला। इसने ट्रेन में आंटी को अपनी यूनिवर्सिटी का बताया था तो पीछा करते हुए वहीं आ पहुंचा। जी फरमाइए। इसने बामुश्किल खुद को ठंडा किया और इसे कड़े तेवरों से घूरते हुए पूछा। लड़के के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। वो कुछ देर यूं ही गुमसुम इसे देखता रहा, जैसे इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करे। इश्तियाल की एक लहर इसके अंदर आई। वो आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ी। आखिर को ब्लैक बेल्ट थी। मिस्टर, मैंने पूछा है कि आप यहाँ किस सिलसिले में तशरीफ लाए हैं? इसके अल्फाज महजब मगर लहजा जहरीला था। लड़के ने एक नज़र इसे देखा, फिर तहम्मुल से पूछा। अनम प्लीज थोड़ी देर आराम से मेरी बात सुन ले। अच्छा, तो इसने मेरा नाम भी याद कर रखा है? इसने दिल में तनफ्फुर से पूछा। हालांकि नामालूम था तो इसे ढूंढता हुआ सीधा यहाँ आ पहुंचा था। इसी वक्त वो कतई भूल गई बात सुनने में क्या हर्ज था। इसने खुद को समझाया, फिर एक कुर्सी घसीट कर इससे जरा फासले पर बैठ गई। अनम नाराज ना हो, मैं आपसे आप फादर के बारे में बात करने आया हूँ। अब्बा का नाम पर वो भुंचका सी रह गई थी। वो तो समझी थी कि वो इसे पहली नज़र की मोहब्बत वगैरह की कोई कहानी सुनाने आया है, मगर वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहा था। मेरे अब्बा को आप कैसे जानते हैं? इसने बेसब्री से सवाल किया। दरअसल आपकी अब्बा ने मेरी फुप्पी से निकाह किया था। पहले तो मुझे भी इल्म नहीं था। एक दिन ऑफिस वालों से इनके वाजिबात वसूल करने गया था तो इनकी फाइल बनवा रहा था। कागजात में इनके साथ आपकी एक तस्वीर भी बरामद हुई थी।
تصویر بہت پرانی تھی مگر بہت واضح تھی۔ اس دن ٹرین میں آپ کو دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا مگر بے یقین سا تھا۔ آپ کی بک پر آپ کا نام درج تھا۔ گھر آ کر پھپھو سے پوچھا تو انہوں نے بھی تصدیق کی اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ آپ کے اپنے ابا کے ساتھ تعلقات برائے نام ہی رہے ہیں۔ میں بھی اس بات کو نظر انداز کر دیتا مگر ابھی 3 دن پہلے ان پر فالج کا شدید حملہ ہوا ہے۔ وہ ہاسپٹلائزڈ ہیں، حالت خاصی مخدوش ہے، انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ میری درخواست ہے کہ آپ ایک بار ان سے مل لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو مل کر سکون آئے اور ان کی حالت میں بہتری آ جائے۔ ہیں ابا بیمار ہیں؟ اتنے بیمار؟ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا مگر اس کا ذہن صرف اسی ایک بات پر اٹکا ہوا تھا۔ اسے اس لڑکے کا چہرہ دھندلا سا نظر آ رہا تھا، وہ سر چکراتا محسوس ہو رہا تھا۔ انم آپ ریلیکس ہو جائیں، انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا۔ یہ کارڈ ہے، اس پر ہاسپٹل کا پتہ درج ہے۔ اس نے دھلاسا دیتے ہوئے اس کی جانب ایک کارڈ بڑھایا جسے اس نے غیبی دماغ سے پکڑ لیا۔ وہی یوں ہی ہک دک کی بیٹھی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور پھر اس کی جانب ذرا سا جھک کر بولا، میرا نام منیب ہے اور کارڈ کی پشت پر میں نے اپنا نام اور ایڈریس وغیرہ بھی لکھ دیا ہے۔ حالانکہ اس کا اپنے باپ سے اتنا جذباتی لگاؤ نہیں تھا مگر خون کی بھی ایک کشش ہوتی ہے۔ ان کی بیماری کا سن کر وہ نڈھال ہو گئی۔ اس دن باقی کلاسز چھوڑ کر ہاسٹل چلی آئی۔ ابا کا تو نمبر بھی کب سے اس کے موبائل سے ڈیلیٹ ہو چکا تھا۔ اپنی روم میٹ عالیہ سے تذکرہ کیا تب وہ بولی، دیکھو انم، آج کل کے حالات بہت خراب ہیں، یوں کسی اجنبی کی کہانی پر من ان اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاسٹل کی وارڈن خاصی سمجھدار ہیں، کچھ عرصہ وومن پولیس میں بھی رہ چکی ہیں۔ ان سے اپنی پریشانی کا ذکر کرو، وہ تمہارے ساتھ اسپتال چلی جائیں گی، اب وہ جہاں کر ہی صحیح صورتحال معلوم ہو سکتی ہے۔ کارڈ پر دیے گئے پتہ پر وہ وارڈن کے ہمراہ ہسپتال پہنچی۔ سامنے بیڈ پر نحیف و نذیر سے اس کے باہی تھے، اتنے کمزور، اس قدر لاغر ہڈیوں کا تقریباً ڈھانچہ۔ اس نے ان کے نقشوش سے انہیں پہچانا۔ ان کے قریب دھری کرسی پر ایک نفیس سی آنٹی بیٹھی تھی۔ وہی لڑکا، شکل سے یاد آیا کہ اس کا نام منیب ہے، ان کی ڈرپ ٹھیک کر رہا تھا۔ وہ ہولے ہولے چلتی ہوئی ان کے سرہانے آ کھڑی، پھر اس نے ان کے جھریاں بھرے کمزور سے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ان کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ ابا جان، اس نے دھیرے سے پکارا۔ وہ آنٹی وارڈن کو بتا رہی تھی کہ ان کے دائیں حصے پر فالج کا حملہ ہوا تھا۔ چہرے کا آدھا حصہ متاثر ہوا تھا، فی الحال وہ بولنے سے قاصر تھے اور ان کے قریب کھڑی آنسو پیتی رہی۔ اس سے اسے احساس ہوا کہ اس نے باپ جیسے انمول رشتے کو نظر انداز کر کے غلطی ہی نہیں گناہ بھی کیا تھا۔ والدین کے ذاتی اختلافات اپنی جگہ، وہ دونوں ہی بچوں کی یکساں محبت اور توجہ کے حقدار ہوتے ہیں۔ یہ جوس لیں۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں غلطاں تھی جب منیب نے جوس کا ڈبہ اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے چونک کر دیکھا، وہ چہرے پر نرم سا تاثر لیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی تشر سے اسے دیکھا۔ وہ کافی دیر بیٹھی رہی۔ رخصت ہوتے وقت جب اس نے ایک بار پھر ابا جی پکارا تو اس بیمار وجود میں ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی اور پھر ان کی بائیں آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور وہ برستی آنکھوں سے لوٹ آئی۔ پھر وہ روز شام میں ہاسپٹل جانے لگی، کبھی ابا کے لیے سوپ اور دلیا وغیرہ بھی بنا کر لے جاتی۔ منیب بھی اکثر وہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کتنی ذمہ داری سے ان کو سنبھالنے میں آنٹی کی مدد کر رہا تھا۔ وہ کام گو سا لیے دیے رہنے والا انسان تھا۔ اس کی موجودگی میں وہ خود کو آرام دہ محسوس کرتی تھی۔ پھر ابا کی حالت کافی سنبھل گئی، وہ ایک دن ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیے گئے۔ منیم نے بتایا تھا کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد آنٹی نے پینشن کے روپوں اور بچت کو ملا کر ایک چھوٹا سا گھر خریدا تھا۔ اسی دوران اس کا اپنے گھر بھی جانا ہوا۔ اماں، میں ابا سے ملی تھی، اس نے حوصلہ پا کر ڈرتے ڈرتے اماں سے تذکرہ کیا۔ وہ خلاف معمول خاموش رہی۔ اماں، وہ بہت بیمار رہے ہیں۔ اماں، میں اب ان سے ملنے جاتی ہوں۔ میں نے غلطی کی تھی، وہ دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔ میں نے بھی غلطی کی تھی، ان کے منہ سے سرسراتا سا جملہ نکلا۔ اس نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ جب سے تمہارے نانا ابو اور نانی اماں فوت ہوئے ہیں، میں خود کو اتنا تنہا محسوس کرتی ہوں۔ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ ایک اہم رشتے سے محروم رکھ کر میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، اس سے اٹھی۔ نہیں امی پلیز، اس نے انہیں لپٹا لیا۔ اس بار وہ لاہور آئی تو ابا کے گھر بھی گئی۔ وہ اسے دیکھ کر کھل اٹھے۔ آنٹی بھی خوش دلی سے ملی۔ وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ منیب اب یہی نہیں ہوتا، آنٹی نے اس کی نظروں کا سوال سمجھ کر کہا تو وہ بری طرح سے جنب سی گئی۔ وہ آنٹی، میں سمجھی وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں،
इसे अपनी मायूसी पर हैरत हो रही थी। इसने खजालत छुपाने के लिए जल्दी से कहा, वो तो तुम्हारे अब्बा बीमार थे, इसलिए मेरी मदद के ख्याल से चंद रोज यहाँ रहा था, वरना इन लोगों का घर तो फैसल टाउन में है। वो शाम को अपनी चंद जूनियर्स को ट्यूशन पढ़ाती थी। आज इसे ट्यूशन फीस मिली थी तो वो अपनी रूममेट आलिया की हमरा मार्केट चली आई। दोनों ने कुछ ज़रूरी शॉपिंग करनी थी। आलिया ज्वेलरी और मेकअप सेक्शन की तरफ चली गई। वो अपने लिए स्टॉलर पसंद कर रही थी। इसे एक गहरे कलर का नफीस सा स्टॉलर पसंद आया तो वो उसने आंटी के लिए खरीदा। फिर अब्बा के लिए एक सफ़ेद कुर्ता भी दिल को भा गया। इधर उधर घूम रही थी जब नज़र एक खूबसूरत ब्लैक कलर की मर्दाना शर्ट पर पड़ी। बेख्तियार नज़रों के सामने मुनीब का सरापा घूम गया। इस पर यह कितनी सूट करेगी। जी में आया कि वो भी खरीदे। फिर इसने बमुश्किल दिल को डांट टपट कर खामोश करवाया। भला वो इसको किस हैसियत से तोहफा देगी। आलिया की तरफ आई तो वो भी अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर चुकी थी। ज़रा इस सब का बिल तो बना दें डिस्काउंट के साथ। दोनों ने सारा सामान काउंटर पर ढेर किया। इसकी आवाज़ पर सेल्समैन पलटा तो अनम हक धक रह गई। सामने मुनीब खड़ा था। आप यहाँ? बेसाख्ता इसके मुंह से निकला। जी मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, वो एतमाद से बोला। वो बेख्तियार इसकी जानब ठटक सी बांधे देखती गई। मिस अनब, आप शायद समझी थी कि इतना बड़ा शॉपिंग मॉल मेरा है। वो इसके यूं देखने पर कुछ शरारत से बोला था। वो सब पटाई गई थी। जी नहीं नहीं, आओ आलिया। वो आलिया को घसीटती हुई तेजी से बाहर निकल आई। यार ये तुम्हारी स्टेप मदर का भतीजा है ना, बड़ा हैंडसम है, आलिया बोली तो वो तड़प उठी। यूं ना महरम मर्दों की तारीफ करना गुनाह है। वैसे भी औरतों को नजरें झुका कर रखने का हुक्म दिया गया है। मजहब में औरतों को नहीं, मर्दों को नजरें झुका कर रखने का हुक्म दिया गया है। मैं तो बाय द वे बात कर रही थी। इसमें इतना बुरा मनाने की तो कोई बात नहीं है, वरना मेरा अपना मंगेतर खुद इतना शानदार है। मैं क्यों किसी नामहरम की तारीफ करूंगी। वो भी आलिया थी। गुस्सा एक पल में आता था इसे। अब भी इसकी नामकूल बात पर भड़क उठी और नाराज होकर आगे आगे चलने लगी। अनम को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। प्लीज आलिया, नाराज ना हो, रुक जाओ, मैं तो मजाक कर रही हूँ। वो भी तेजी से इसके हम कदम हुई। वो जरा सर की और फिर पानी खेत से बोली, इस मजाक का पसे मंजर में कुछ कुछ समझ रही हूँ। वो भागकर इससे लिपट गई। आलिया प्लीज। दोनों एक सेकंड एक दूसरे की तरफ देखती रही। फिर दोनों एक साथ हंस पड़ी और यूं ही हंसते मुस्कुराते हॉस्टल जाने के लिए रिक्शा देखने लगी। अगली बार वो संडे को गई। आंटी ने अब्बा को नहलाना था, इसने इनकी मदद की। फिर तेल से अब्बा के सर में मसाज करने लगी। वो गनूदगी में चले गए। आंटी ने पड़ोसन की आदत को जाना था, वो चली गई। वो अब्बा को चादर ओढ़ाकर बरामदे में आ बैठी। मौसम आज फिर अबरआलूद था। कुनमुन हो रही थी। इसे बेख्तियार ट्रेन का वो सफ़र याद आ गया। भीगा भीगा सा सफ़र और साथ ही किसी ने मेहरबान चेहरा भी। जरा सी आहट हुई। इसने बंद आंखें खोल कर देखा। मुनीब अपनी मोटरसाइकिल अंदर ला रहा था। इसके दिल को अजीब सी खुशी हुई। मन में एक शोर सा मचा। इसने डपट कर दिल को खामोश कराया। वो लंबे लंबे डाक भरता इधर ही आ रहा था। हाथ में एक शापर थाम रखा था। इसे एकदम सामने बैठा देखकर ठटक गया। फुप्पो कहाँ हैं? मैं इनके लिए पकोड़े लाया हूँ। वो पड़ोस में गई हैं। वैसे आपकी फुप्पो के अलावा भी यहाँ कोई होता है, वो खफकी से बोली। अच्छा तो फिर ये लें शापर। इसने लिफाफा इसकी जानिब बढ़ाया। वो किचन में गई। ये दो अलग अलग शापर में पकोड़े क्यों हैं? वो एक प्लेट में पकोड़े निकाल रही थी। एक में मीठे हैं और दूसरे में नमकीन। वाह, आज तो मज़ा आ गया। इसने कुछ पकोड़े हाथ पाट में रखे और कुछ प्लेट में रख कर वहाँ चली आई। प्लेट सामने मेज़ पर रखी और जल्दी से एक पकोड़ा उठाकर मुंह में डाला। ये शायद नमकीन वाला है, ध्यान से खाइएगा, आज भी हरी मिर्च ना निगल लीजिएगा। वो मुस्कुराकर बोला तो वो खिलकर हंसने लगी। हंसते हंसते इसकी आंखों में पानी आ गया। वो दिलचस्पी से इसका मनी से लड़की को देख रही थी जो कितनी जज्बाती थी। आपको वो सफ़र याद है? वो अपने पल्लू से अपनी आंखें पूंछ कर बोली। हाँ, सब याद है, वो सादगी से बोला। मेरी ज़िंदगी का वो यादगार सफ़र था। मुनीब, शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अब्बा से मिलवाया, वरना मैं तो अपने इतने अहम रिश्ते को भूले बैठी थी। वो भराई हुई आवाज़ में बोली। मैं ममनून हूँ आपकी। आपने मुझे सारी उम्र के खसारे से बचा लिया और मैं भी शुक्रगुजार हूँ अनम। मेरे शुक्रगुजार भला वो कैसे? मैंने आपके लिए क्या किया है? वो हैरत से पूछने लगी। इस दिन यूनिवर्सिटी आपसे मिलने आया था तो आप बड़े ख़तरनाक तेवरों से मेरी तरफ पड़ी थी। शायद पिटाई का इरादा था, फिर शायद आपने खुद को मुश्किल से रोका था। वो मुस्कुराहट दबाकर बोला। ठीक समझे थे आप।
अम्मा ने मुझे कराटे सिखाए थे ताकि मैं बवक्त ज़रूरत अपना दिफा कर सकूं। एक दो बार अपना पीछा करने वाले आवारा लड़कों की ठुकाई भी लगाई थी। मैंने वो फ़ख्र बताया कि हाय अल्लाह, फुप्पो कहाँ हैं, कब आएंगी? वो मसनूई तौर पर घबरा कर खड़ा हो गया। वो हंसते हंसते दोहरी हो गए। बारिश अब तेज़ हो रही थी। फुहार बरामदे के अंदर आकर दोनों को भिगो रही थी। बेफिक्र रहें, आप इस कैटेगरी में नहीं आते। तो फिर बता दें किस कैटेगरी में आता हूँ। वो बोझल लहजे में पूछने लगा। इससे कोई जवाब ना बन पड़ा। आपको सावन रुत पसंद है? वो इसकी गहरी कुछ कहती निगाहों से घबराकर यूं ही पूछने लगा। हाँ, पहले तो इतनी नहीं थी, मगर अब बहुत ज्यादा है। मुझे भी पहले तो नहीं थी, मगर अब बहुत ज्यादा है। इसने भी इसका जुमला दोहराया। क्यों? दोनों के मुंह से बेरक वक्त निकला। दोनों ही खामोश रहे। दोनों ही जानते ही थे कि यह सावन रुत इन्हें इसलिए पसंद है कि वो इसी सावन रुत में पहली बार मिले थे। सावन रुत के हम सफ़र दोनों के लबों पर मैनी खेज खामोशी थी, मगर दोनों के दिल दुआ गो थे कि सावन रुत के दो हमसफ़र जिंदगी के हमसफ़र भी बन जाएं। दोनों के चेहरों पर खूबसूरत तबस्सुम सजा था और आंखों में आने वाले खुशकुन वक्त के सपने धमक रहे थे। सावन की ठंडी ठंडी हवाएं इन्हें छू कर गुजर रही थी और साथ ही इनके मिलन की दुआ भी कर रही थी। जब दो मोहब्बत भरे रिश्ते सच्चे दिलो मन से एक दूसरे के तलबगार होते हैं तो आस पास की फिजाएं भी इनके लिए दुआ गो हो जाती हैं।